Let us look to God in prayer. Heavenly Father, we just want to thank you. We want to praise you, glorify you, bless your holy name for this beautiful day that you've given us, Lord. We thank you, Lord, for who you are in our lives. We thank you, Lord, for what you have done in our lives. We thank you, Lord, for your great plans and purposes for our lives, Father. We shall not. We thank you, Lord, for who you are in our lives. We thank you, Father, for your plans and purposes that you have for our lives. We should not take it for granted, Lord. We thank you, Father, Lord, your goodness, your kindness, your mercies upon our lives. Thank you, Lord, for the salvation of our souls. Even when we were lost in the world, you sent your son Jesus to die for us. He shed his precious blood for our redemption. His body was broken for our healing. Today no sickness, no aches, no pain can remain in our bodies. Because by his stripes we are being healed. His word says in Lamentation 3:22 onwards, through God's mercies we are not consumed because his compassion faileth not. They are new every morning, great is his faithfulness. The Lord is my portion in the land of the living. Those who trust in him shall never be put to shame. Amen. The word of God says, enter his gates with thanksgiving and enter his courts with praise. We have come to thank him for the past week, what he has done in our lives. The word of God says that everything that has breath praise to him. प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हर एक जीवित जो जन है जिसमें श्वास है वो प्रभु की स्तुति करे. So let us give thanks to him. तो फिर अभी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा.
we gather in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we we welcome you, the Father, Son, and the Holy Spirit, the triune God in our midst. Holy Spirit, we can do nothing without your presence. From the beginning till the end, Father, take full control. Take preeminence over the service, Lord. Let the lives be changed, Father, Lord. हमारा जीवन बदल जाएगा Those who come with a burden, प्रभु जो आते हैं बोझ के साथ let them be lightened, Lord. प्रभु उनका बोझ हल्का हो जाए If there is amongst us anyone having sickness or aches in their bodies, let them find healing, Lord. प्रभु हमारे बीच में अगर कोई है जो दर्द के साथ या फिर कोई बीमार के साथ आए हैं प्रभु उनको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए If there is anyone amongst us who is captive in his own imagination, Father, Lord, let him be set free today in the mighty name of प्रभु अगर Jesus. कोई भी अगर यहाँ पर मौजूद है जो अपने ख्यालों की वजह से प्रभु बंधन हो गए हैं प्रभु वो आज आजादी को प्राप्त करे
Even as we sing and praise your holy name, Father Lord. और जैसे हम आप गीत गाते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं, Do only what you can do in our midst. प्रभु आप वो करें जो आप ही कर सकते हैं हमारे बीच में। Amen. Amen. I sing praises to your name. Oh, Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
world. मैं प्रभु का वचन में कहता है कि जो मेरे अंदर है वो उससे भी महान है जो इस संसार में है। Hallelujah. हालेलुया। Oh, jai 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 करे। Oh, jai जय जयकार करे। ओ हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। ओ हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों सुंदर मन वाले तेरा अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो महामारी, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, आसमानों बताए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका है बखान। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय Father, you are the fountain of our life. Only you can satisfy the weary soul, Lord. प्रभु आप ही हमें चुप कर सकते हैं अपनी तरफ से। You are the God of comfort and the Prince of Peace. और प्रभु आप ही हमें सांत्वना देते हैं और आप शांति के राजा हो। You alone can calm every pounding heart and still every fearful thought. प्रभु हर एक जो आगे हमारे अंदर हमारे हृदय में निकलती है प्रभु उसको आप ही थाम सकते हैं प्रभु। Father, we are thirsty for that living water, Lord, प्रभु हम प्यासे हैं प्रभु उस जीवित जल के लिए which can sustain our soul. प्रभु जो हमारे प्राण को प्रभु हमें चले जाने के लिए मदद कर सकता है। Isaiah 44:3 says, "For I will pour water on him who is thirsty." और यशायाह की किताब 44 में तीसरा वचन कहता है कि जो प्यासे हैं उनको मैं पानी दूंगा। And fountain on a dry ground. और जो ऐसे जो सूखी हुई भूमि है प्रभु आगे वो फुहारा करके आते हैं। Are you thirsty for the living God? क्या आप प्यासे हैं उस जीवित प्रभु के लिए? Thank you, Father, for your unfailing love. धन्यवाद प्रभु तेरा जो प्रेम कभी नहीं जो नाकाम होता है। Father, we rejoice in your assurance of your grace, Father. प्रभु आपके वचन में जो आश्वासन हमें देता है उसमें प्रभु हम भरोसा रखते हैं। Father, do what only you can do.
त्याग वो आप ही करें। As the deer panted for the water, so my soul looks after you. You are Lord, my heart's desire, and I long to worship you. You are Lord, my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are a I love you more than any other, so much more than anything. For you alone my strength, my shield. You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Yes, we long to worship you.
Lord, to stay focused on every word that was spoken in the Bible. हम केवल उसी वचन पे ध्यान देंगे जो बाइबल में लिखी हुई है। No matter the situation or the outcome. और इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी परिस्थिति या उसका फिर जो परिणाम होगा। Holy Spirit, help me to live, keeping my eyes on you, Lord. पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं आगे बढ़ता जाऊंगी, मैं अपने आंखों को आपके ऊपर रखते हुए। Father, teach me प्रभु मुझे सिखा how to fly on the eagle's wings. कि मैं कैसे उड़ सकूं उस उकाब के पंखों पर। Father, you teach me to walk on the stormy waves. और प्रभु मुझे सिखा कि मैं चल पाऊं उस आंधियों की लहरों पे। Father, this is the place. और यही वो जगह है प्रभु, Place of exchange, Father. और जहाँ पर हम अदला बदली कर सकते हैं। Where our destinies are altered. और जहाँ पर प्रभु नियतियों को बदल दिया जा सकता है। This is the meeting place. और वही कोई जगह है, जरूरत की जगह, That God meets with the man. जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य के साथ मिलते हैं। Father, cleanse us thoroughly, Father. प्रभु हमें शुद्ध कर प्रभु। Let your fire consume everything that doesn't belong to your kingdom in our lives. प्रभु आपका जो आग है वो हर एक चीज को भस्म कर दे हमारे जीवन में जो आपके राज्य में नहीं है। Father, break every chain of sickness. प्रभु हर एक जो जंजीर है बीमारी का उसको तो तोड़ दे प्रभु। Every chain of darkness. प्रभु हर एक अंधकार की जो जंजीर है उसको तोड़ दे प्रभु। Satanic pacts. और जो भी ऐसे कर्जा है प्रभु, Backsliding. और जो पीछे हटने का, Every root of deception. प्रभु हर एक जो धोखा देने की जो जड़ है प्रभु, Set your people free from the stronghold, Father. प्रभु आपके बच्चों को प्रभु हर एक मजबूत घर से तू उन्हें छुटकारा दे। Deliver your people today, Lord. प्रभु आपके लोगों को प्रभु आप छुटकारा दे दे And प्रभु। who are new in their lives. प्रभु आप जैसे उनके जीवन में है। Satan comes to steal, to kill, and to destroy. और शैतान आता है घात करने के लिए, हत्या करने के लिए और नाश करने के लिए। But you came that we may have लेकिन आप आए life in हैं abundance. ताकि हम जीवन पा सके बहुतायत से। Lord, we want to thank you. प्रभु हम आपको धन्यवाद देना Lord, चाहते we हैं। praise you, Lord. हम आपको केवल स्तुति देना चाहते हैं। Truly, Lord, और there सच is none में like you. None besides, none even closer to you, Father, Lord. शुभ मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसाना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा, तू है Do you believe that He is your God? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपका परमेश्वर है? Do you believe that He is your Father? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपके पिता हैं? If you believe, और आप विश्वास करते हैं He will definitely be your Father and He will be your God. वो सच में आपका परमेश्वर और आपका पिता बन जाएगा। When we come in His presence, जब हम उनकी उपस्थिति में आते हैं,
We come with that belief. हम उस विश्वास के साथ आते हैं We come with that hope. और उस आशा के साथ आते हैं When we say, जहाँ हम कहते हैं Lord, you are my Father. कहाँ प्रभु आप ही मेरे पिता हो, Jesus, you are my Father. यीशु आप ही मेरे पिता हो, You are my friend. आप ही मेरे मित्र हो। And when we come in His presence, और जब हम आते हैं उनकी उपस्थिति में, your Father cannot see you in tears. आपके पिता आपको आंसू में नहीं देख सकते हैं Your Father cannot see you in pain. और आपके पिता आपको दर्द में नहीं देख सकते हैं। Today you are in His presence. आज आप उनकी उपस्थिति में हो You know why you are in His presence? और जैसे आप उनकी उपस्थिति में हो अभी, As you closed your eyes जैसे आप अपने आंखों को बंद करते हो and you look at the cross, और आप उस क्रूस को देखते हो you bring Jesus in front of you on that cross. और आप यीशु मसीह को लाते हो उस आपके सामने उस क्रूस पर You realize और आप ये जान लेते हो that what He has done for us. कि जो उन्होंने किया है हम सभी के लिए, He died for us on that cross. वो मर गए हमारे लिए उस क्रूस पर। Not only that, उतना ही नहीं, but He got resurrected on the third day for us as well. वो हमारे लिए जीवित हुए तीसरे दिन। So even as we die to our sin today, और जैसे हम अपने पापों के लिए मर जाते हैं आज, we believe that when we get resurrected today, और हम विश्वास करते हैं कि जैसे हम भी जीवित उठेंगे आज, the glory of the Lord will fill us. जो प्रभु की जो महिमा है वो हमें भर देगी आज। Right now we are in His glorious presence. और अभी तो हम उनकी महिमा में उपस्थिति में हैं। This presence is not a normal presence that you come in a building. और ये ऐसी एक साधारण एक उपस्थिति नहीं है जो आप एक कोई इमारत में आप आ सकें। This presence is not about the AC environment that we may be in. और ये ऐसी यहाँ पर जो मौजूद है उसका ये उपस्थिति नहीं है। The presence of the Lord can do marvelous things. और परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो बहुत ही अद्भुत कार्य कर His सकती है। glory can fill us when we feel empty. और उनकी महिमा हमको भर सकती है जब हम खाली महसूस करते हैं। His glory can help us to move ahead even if we are feeling we are behind. और उनकी उपस्थिति है जो महिमा है वो हमें ऐसा जब हम पीछे जा रहे हैं ऐसा महसूस करते हैं वो हमें आगे बढ़ा सकता है। And His glory और उनकी जो महिमा है can give us peace वो हमें शांति दे सकती which है can surpass every human understanding. जो हर एक मनुष्य समझ के भी परे है। Today, और आज when you've come here, जब आप आए हैं, maybe you may have no other expectation. शायद आपने कोई भी अपेक्षा ना हो Or you have come here और आप आए हो saying, Lord, ये कहते हुए प्रभु how would you change that particular situation? आपने उस परिस्थिति को कैसे बदला, And that may be your expectation. वही शायद आपकी अपेक्षा हो सकती है। The glory जो प्रभु की महिमा है is already touching you right now. वो अब पहले से आपको छू ले लेगा। You may not understand it, आप उसको शायद समझ ना पाए, but in days to come, लेकिन आने वाले दिनों you में will realize आप उसको जान लेंगे that how the glory of the Lord कि कैसे परमेश्वर की जो महिमा है is going to make everything new in your life. कि आपके जीवन में सब कुछ नया बना देगी, Everything new. सब कुछ नया। And as we sing और जैसे हम गाते हैं this song, ये गीत, as we continue to say, Father, और जैसे हम निरंतर कहते हैं पिता, let that Father really be a relationship. और वो पिता जो है सच में एक संबंध बन जाए हमारे। You will not call on your Father just like that. और आप अपने पिता को ऐसे नहीं बुलाओगे, You will call upon your Father when you really need something. और जब आपको सच में कुछ जरूरत हो तब आप अपने पिता को बुलाते हैं, Knowing the hope that you have in Him, और ये जानते हुए कि वो जो आशा आपका है उसके He ऊपर, will never turn you down. वो कभी आपको निराश न करेंगे, He will never turn you down. वो कभी आपको निराश नहीं If करेंगे। you believe that, अगर आप विश्वास करते as we हैं, sing, जैसे हम गाते हैं, let it be your prayer. वही आपकी प्रार्थना होंगे। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, ये वही पिता है जिसने हमें छुड़ाया है। हमसे इतना प्यार, ये वो पिता है जो हमसे आज भी प्यार करता है। हमें पापों और ये भी पिता है जो हमें पापों से छुड़ा सकता है।
बढ़ाकर हम गाएंगे। होशाना लॉर्ड, तू है राजा, तू ही है प्रभु का प्रभु। तेरी महिमा होने दे सके। Open your mouth and ask. Ask unto the Lord. The reason why you've come here is for a purpose. And when you ask unto the Lord, it could be somebody is healing in your family. You may be asking for your loved ones. When you open your mouth and ask, so it could be you're here for your children. If you've come here for your children and you're asking for your children, ask like you're asking to your father. You say, Jesus, touch my children. My children are going astray. If you come here for your parents, you come here for your spouse, and you are waiting upon their healing, the Lord's presence will heal them wherever they are in Jesus' name. The Lord is here. The Holy Spirit is here. He's touching each and every one of you right now. Maybe you don't feel it, because that is what the devil wants you to feel. But the Holy Spirit presence is here irrespective of how you feel. He's touching each and every one of you today. He's going to change each and every one of us right now. He's going to bring healing in those areas which needs healing. If you are broken hearted today, the Lord is healing that area. And He's healing and filling His love in that area. That emptiness in that broken spirit, that agape love is getting filled in those areas. Father, thank you. We thank you because we know, and we know with our hearts, that today when we leave this place, we are going to be healed. We are going to be delivered. Every prayer that we have made is going to be answered. And when we know this, we are just going to smile at you today. Then sings my soul, my Savior Lord to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior
कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे सुनो गर्जन सावन तेरे सारे भूमंडल प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना Yes, Prabhu Yeshu, we have come into your presence this morning. प्रभु आज तेरी उपस्थिति में हम आए हैं। We thank you, Father, for this day. प्रभु इस सुंदर से दिन के लिए तेरा We धन्यवाद। thank you, Lord, for this time that you have given to us. प्रभु ये जो समय आपने हमें दिया है आपका धन्यवाद। Thank you, Lord, for your presence in this place. प्रभु इस जगह पर तेरी उपस्थिति है इसीलिए तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord, we praise you and give you all the glory and प्रभु honor. सारी महिमा हम तुझे देते हैं, सारा आदर सारा धन्यवाद तुझे देते हैं। Lord, you are awesome, you are wonderful. प्रभु तू अद्भुत है, तू बहुत सुंदर है। You are magnificent, you are excellent, O Lord. प्रभु तू बहुत महान है, तू बहुत बड़ा You are the परमेश्वर है। Lord of Lords, you are the King of Kings. तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु You है। are the bright and morning star, you are the lily of the valley. प्रभु तू भोर का तारा है, तू शरण का गुलाब है। You are the Prince of Peace, Father. प्रभु तू शांति का राजकुमार है। You are a shepherd, you are a shield. प्रभु तू ही हमारा चरवाह है, तू ही हमारी ढाल है। You are a refuge, you are a strong tower. प्रभु तू ही हमारा शरण स्थान है और हमारा दृढ़ गढ़ है। We appreciate you this morning, Lord. प्रभु आज की सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी सराहना करते हैं। So many people couldn't see this day, Father. प्रभु अनगिनत लोग हैं जिन्होंने आज का ये दिन नहीं देख पाए, But Lord, we are present in your presence. लेकिन प्रभु तेरी उपस्थिति में तूने हमें लेकर आया। तेरा धन्यवाद, Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर, praise you, Father. तेरी स्तुति करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम Lord, as प्रार्थना we की। proceed further with the message, प्रभु जैसे संदेश में हम आगे बढ़ते हैं, let your Holy Spirit help us to speak. प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, इस ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। Father, fill each one of us with your power and strength. और हर एक को प्रभु तेरे सामर्थ से, तेरे बल से तू भर दे। Father, fill each one of us with your anointing. प्रभु हम हर एक को तेरे अभिषेक से भर दे। Father, fill us with your Holy Spirit. प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे। Without your Spirit, Father, we cannot do anything. प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। Father, come and have your way. प्रभु तू आ और नियंत्रण ले। Come and take absolute control of every word that we speak today, Father. प्रभु हर एक वचन जो आज हम बोलते हैं परमेश्वर, उसका तू नियंत्रण ले। We thank you, everlasting Father. धन्यवाद अनंत काल के पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory and honor. सारी महिमा सारा आदर तुझे देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना की, Amen. आमीन। You all can be seated. हम सब बैठ जाएंगे। God is good. प्रभु भला है All the time is good to us. और सदा के लिए वो भला है। He is a good God. वो भला परमेश्वर है। Each one of us today. उसने हम सभी को यहाँ पर For उसकी His purpose and plan. उसकी योजना को पूरा करने के लिए, Today as we go back home, कि आज जैसे हम घर वापस जाएंगे, go back the same. हम वैसे ही नहीं जाएंगे जैसे Go हम आए back हैं। home anointed and filled with His Spirit. और हम अभिषेक होकर और उसकी आत्मा से भरे हुए होकर जाएंगे। Today I thank God for giving me this opportunity. और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, आज परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया। It's the first time I'm giving a message in Glory to Glory Church.
और ग्लोरी टू ग्लोरी कलीसिया में पहली बार मैं संदेश दे रही हूँ Thank God and I praise Him and I give Him all the और मैं glory. प्रभु को सारी महिमा सारा आदर धन्यवाद देना चाहती So हूँ only because I'm alive, I'm living, God is there with us. और क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है इसी कारण मैं जीवित हूँ और मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ Thank God for all the good things He has done in my life. और परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो सारी भलाई की है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ Today my topic is prayer and healing. और आज जो मेरा संदेश का शीर्षक है प्रार्थना और चंगाई I purposely took this prayer point because I want each and every one to be completely healed in their body. और मैंने इसलिए ये संदेश लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम में से हर एक जो है अपने जीवन में चंगाई को पूरी तरीके से अनुभव करे My topic for today is prayer and healing. और मेरा जो संदेश है वो है प्रार्थना और चंगाई Prayer is nothing but communicating with God. और प्रार्थना का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के साथ में संवाद करते हैं बातचीत करते हैं God loves us. और परमेश्वर हमसे प्रेम रखता He है wants to hear our voice every morning. और वो चाहता है कि वो हर रोज प्रतिदिन हमारे से हमारी आवाज को सुने जब हम प्रार्थना में उसके साथ बात करते हैं And He also wants to talk to us. और वो भी हमसे बात करना चाहता है So as we get up in the morning, तो जैसे हम सुबह उठते हैं first and foremost, सबसे पहला जो चीज हमें करना चाहिए we should go into our room, वो है कि हमें अपने कमरे में एकांत में बैठकर speak to God. परमेश्वर से बात करनी चाहिए प्रार्थना करना Ask चाहिए Him everything that you need. और जो कुछ भी आपको चाहिए आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं God changes things. और ये बात भी सच है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो चीजें हैं उसमें बदलाव को लाता And है God is available every moment of our life. और परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षण में वो हमारे लिए हाजिर है Anytime we go to Him, He is there for us. जब कभी भी हम उसे पुकारेंगे तो वो तैयार है हमारी सुनने के We लिए should not be ashamed to go and pray to God. और हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए और मांगने के लिए And we should not be proud to go to Him. और हमें जो है घमंड भी नहीं करना चाहिए कि हम कैसे क्यों प्रार्थना करें God is not busy to hear us. और परमेश्वर इतना व्यस्त नहीं है कि वो हमारी सुन नहीं सकता He is always by our side. वो हमेशा हमारे साथ में होता है He is Jehovah Shammah. और वो यहोवा शामा है Shammah means like He is always by our side. और यहोवा शामा का अर्थ ये है कि वो हर समय हमारे साथ में रहता है So God loves each and every one of us. और परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है And whatever we ask Him, He answers. और जो कुछ भी हम उससे मांगेंगे वो उसका उत्तर देता है He is a good God. वो एक भला परमेश्वर है Awesome. वो सचमुच अद्भुत परमेश्वर है When we get up every morning, first thing we have to do is to pray. और जब हम सुबह उठते हैं तो पहली चीज हमें यही करनी चाहिए कि हमें प्रार्थना करना है Request each and every one of us Yeah. not to go to the text message. और मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप पहले उनके मोबाइल को ना देखें लेकिन प्रार्थना करें Don't answer any phone calls. और किसी के फोन कॉल यदि आता है तो उसे भी आप पहले ध्यान These न are the दें words लेकिन which I'm giving you today because I'm seeing there are many bad things are happening in the world. और मैं आज ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि संसार में बहुत चीजें जो है खराब होती जा रही है दिन ब दिन So don't go into social media or Facebook or YouTube or WhatsApp. और आप ये सारे जो सोशल मीडिया है वो पहले ना देखें कि लेकिन पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें This mobile is tempting each one of us. और ये जो मोबाइल है हम सभी को बहुत ऐसे प्रलोभन में डालता है We should be very attentive. God is watching each and every one of us. लेकिन परमेश्वर हम सभी के ऊपर नजर बनाए रखा है तो हमें बहुत ध्यान से सतर्क रहना है First and foremost, we should thank God for the new day that He has given us to see. और जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए शुरुआत करना है Or whatever God is doing in our life, He has given us so many things and we are blessed with so many blessings. So we should thank God for it. जो कुछ भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो पहली चीज हमें धन्यवाद के साथ शुरू करना है जो सारी चीजें उसने हमारे जीवन में हमें दी है उसको याद करते हुए Second thing is ask God for forgiveness. और उसके बाद में हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी है जो हमने पाप किया है उसके When we लिए ask for forgiveness, God answers. जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है I'm not saying that we are all sin, but we sin by our thoughts, words, and deeds.
मैं ये नहीं कह रही कि हम में से कोई पापी नहीं है, हम पाप करते हैं कहीं ना कहीं, हमारे सोच विचार में, हमारे बोलने में। Sometimes we become impatient and angered. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें हमारा धीरज हम खो We देते are हैं, all children of God. हम क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए। We should ask God for forgiveness. हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। And the next point is we should ask for His blessing into our life. और उसके बाद में हमें उससे जो आशीष हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में करे, वो हमें We मांगनी have seen चाहिए। during this lockdown period, we were so tired up, we were so tensed and worried. और लॉकडाउन के समय में हम सब ने अनुभव किया कि हम कितने अपने घरों में बंद थे, हम चिंतित थे। So many people lost their jobs. कितने लोगों की नौकरियां चली गई इसके So many people कारण, had financial problems. कितने लोगों को आर्थिक समस्या आ गई, So many people were in the hospitals and deathbed. कितने लोग थे जो मरने की कगार पे थे, So many मृत्यु people हो were गई, waiting for the graveyard to bury them. और कितने लोग थे वो मर चुके थे। And the loved ones who couldn't see them. और ऐसी भी स्थिति आई कि जो प्रियजन उनकी आखिरी समय में उनके साथ में भी नहीं रह पाए। Even once when I went to the funeral, 2 COVID patients came. और एक बार मैं भी किसी के ऐसे आखिरी इसमें गई थी फ्यूनरल में, वहां पर 2 कोविड पेशेंट आए थे, They were not allowing us to go forward. लेकिन हमें वो आगे जाने भी नहीं दे रहे थे। But I went and it's a plate for those families. लेकिन हमने वो परिवार वालों के लिए Because भी God is प्रार्थना a किया, good God. क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर He है, was always by our side. वो हर समय हमारे साथ में When we रहता है। do anything, we ask for anything, He answers. और जब कभी भी हम कुछ पूछते हैं उससे तो वो उसका उत्तर देता है। He is a good God. वो भला Read परमेश्वर the है। Bible every day. और हर प्रतिदिन हमें बाइबल पढ़ना है। I request each and every one today. मैं हर किसी से विनती Take your करूंगी Bible and read. कि हर रोज हमें बाइबल पढ़ना Mobile है। is not a marked Bible. और मोबाइल जो है या मोबाइल में जो बाइबल है वो कोई बाइबल नहीं, Take the word of God and read. परमेश्वर का वचन हमें लेना है और बाइबल पढ़ना है। Not to read once in a week. सप्ताह में एक बार नहीं, Read every day. प्रतिदिन हमें पढ़ना है। Pray every moment. हर क्षण हमें प्रार्थना करना है। Morning, afternoon, evening, night. और सुबह, दोपहर, शाम, रात। And we see that God's blessings will be upon us. और हम देख पाएंगे फिर परमेश्वर की आशीष कैसे हमारे जीवन का भाग बनती है। One more thing is in Ezekiel 36:25 it is said. हिजकिय्याह की पुस्तक 36:25. 36वीं अध्याय उसमें 25वां I वचन, will sprinkle clean water upon you. I will sprinkle clean water upon you and remove all your impurities. हिजकिय्याह की पुस्तक 36वीं अध्याय उसमें 25वां वचन। Now I want each and every one to write down the words that I'm giving you, because this is the prayer for healing. और मैं चाहती हूँ कि आप मैं सब वचन देती हूँ, प्लीज आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए, so that when time comes, when you require healing, you can claim this promising words. और यदि आपको जब चंगाई की जरूरत है तो आप ये वचनों को पढ़ सकते हैं और ये वचनों को आप अपने जीवन में घोषित कर सकते हैं। In that it is written, इसमें लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। that this is the promising word God gives us. ये परमेश्वर का वायदा है जो वो हमें देता है He will remove all the impurities from कि our वो body. हमारे अंदर की सारी अशुद्धता को निकाल देगा और वो हमें आशीषित करेगा। He will take us away from every depression. वो हमें हर एक मानसिक पीड़ा से निकाल देगा Sickness, every mental, emotional. और हर एक मानसिक तनाव से वो हमें निकाल देगा He will fill us with His Spirit. और वो अपनी आत्मा से हमें भर देगा। Thank Father for all the good things He's doing in our life. और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं सारी अच्छाई के लिए जो वो हमारे जीवन में कर रहे हैं। I'm a living testimony. और Today I'm standing. मैं खुद एक जीवित गवाही हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। Some years back I was diagnosed with cancer. और कुछ वर्ष पहले मुझे कैंसर बताया गया था I went to the doctor as it is, as a normal person. और मैं एक साधारण ऐसे व्यक्ति की जैसे मैं डॉक्टर के पास गई, But doctor diagnosed that I have cancer. लेकिन- Small gland. लेकिन डॉक्टर ने बताया कि मुझे कैंसर है So and I was having surgery was done और उसके बाद में ऑपरेशन हुआ and I was completely healed after that. और
उसके बाद में परमेश्वर ने पूरी तरीके से मुझे चंगाई दिया And God chose me. और परमेश्वर ने मुझे चुना And He said in His word in John 15:17, और उसने अपने वचन I have यूहन्ना chosen you, not rejected you. यूहन्ना की पुस्तक 15वीं अध्याय 17वां वचन, I have chosen you. Go and bear fruits. तो प्रभु ने ये बताया कि जाके फल लाओ। फल लेके आओ. So that is what the same word I got it. So I was very depressed. So I said, let me do the work of God now. और वो वचन जैसे ही मुझे मिला तब मैंने निश्चय किया कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगी। But during that period of sickness, लेकिन वो बीमारी के जो क्षण थे उस समय में, one of my church sister brought one book and gave me. और एक बहन जो थी हमारी कलीसिया की, उन्होंने मुझे एक किताब ला कर दिया 40 days in healing. और उन्होंने मुझे वो किताब दिया। उसका शीर्षक था 40 दिन में चंगाई को प्राप्त कोई करो। भी कैंसर होएगा तो कोई भी अच्छा सोचेगा नहीं, बुरा ही सोचेगा कि क्या होएगा। और जो when you are sick, when you have cancer, you will always feel that you are going to this is going to be the end. I started with that 40 days healing book. और मैंने वो 40 दिन की चंगाई की जो किताब है वो पढ़ना शुरू किया। Yeah, when I started the first day, I said, who is going to read this book? और जब पहला दिन मैंने पढ़ने को भी शुरुआत किया तब मैंने सोचा कि इसे कौन पढ़ेगा पूरा। So I started with the book. और मैंने शुरुआत किया पढ़ने के लिए। First words वचन मिला है और जो पहला वचन था Exodus chapter 26. निर्गमन की पुस्तक 15वीं अध्याय, ये सब लिख के लेना, ये सब healing का है, ये सब चंगाई का वचन है। उसमें 26वां वचन, Exodus 15:26. If you listen carefully to the voice of the Lord your God यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन and do what is right in His sight, तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सभी विधियों को माने, I will not bring any of the sickness तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा that I have brought upon the Egyptians. उनमें से मैं एक भी तुझ पर न भेजूंगा, For I am the Lord that heals you. क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। Such a nice and promising word God gave us. ये सच कितना अच्छा परमेश्वर ने वचन और बादशाह का परमेश्वर ने वचन हमें दिया है। Exodus 23:25. और निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसमें 25वां वचन, Worship the Lord your God और तुम अपने परमेश्वर यहोवा को की उपासना करना and His blessings will be on your food and water. और वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा I will take away your sickness from among you. और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। और ये मैं तब पढ़ रही थी जब मैं बीमार थी। So I will take away your sickness among you. मैं तुम्हारे बीच से रोग दूर कर And दूंगा none will be miscarried or barren. और तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा And I will give you a full lifespan. और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। It's a per day. One day I used to read these verses. और एक दिन मैं ये वचनों को पढ़ती जाती फिर थी वही पुस्तक में I got the next verse. और उसी किताब में मुझे अगला जो मेरा वचन मिला Joshua chapter 1:9. वो है यहोशू की पुस्तक। I remember that Shanti and Doreen we all prayed. We're using this word for the sickness. और हम ये वचन जो है प्रार्थना जब करते हैं तभी हम बीमारियों के लिए भी ये चंगाई के लिए वचनों को इस्तेमाल करते हैं। Joshua chapter 1 में लिखा है. यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय Do not 9 be वचन, discouraged. Do not be discouraged. जो है हियाव बांधो Do not be dismayed. और दृढ़ हो जाओ, As I was with Moses and Joshua, जैसे मैं मूसा के साथ और यहोशू के साथ था, I will be with you. मैं तुम्हारे संग भी रहूंगा। I will never leave you nor forsake you. मैं तो न तुम्हें छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। So nice promising words he gave. कितना अच्छा और सुंदर ये बादशाह का परमेश्वर ने वचन दिया है। I was very peace with that words. और ये सब वचन पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर बहुत ही शांति आ गई। फिर उसके बाद I got Psalms 103:1-4. और उसके बाद में हम खोलेंगे भजन संहिता की पुस्तक 103 1 से लेके 3। Praise the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह and all my inmost bring praise His holy name.
और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य Praise the कहे। Lord, oh my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य And कहे do not forget all his benefits. और उसके किसी भी उपकार को न God भूलना। has done so many things in our life, but we should not forget him. We should keep praying and trusting him. हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने सारी चीजें किए हैं, हमें वो सबको स्मरण करना है हमेशा। Third verse says, I will forgive your iniquities और तीसरा वचन कहता है वो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता and है I will heal your disease. और तेरे सभी रोगों को चंगा करता All है। these verses are about Chengai over here. और ये सारे वचन जो है ये चंगाई के वचन हैं। The fourth verse is saying that I will redeem you from the pit of darkness. और वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है Crown you with his everlasting love. और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट मारता है। Such a wonderful God we have. कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा He's a very good God. और सचमुच वो बहुत अच्छा है। After that I got the word 2 Chronicles 7:14. और उसके बाद जो वचन मुझे मिला That वो is था why I remember all these verses. और दूसरा इतिहास का पुस्तक 7वीं अध्याय 14वां वचन। If you humbly come unto me, तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और प्रार्थना करेंगे seek me, और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएंगे, उनकी बुरी चाल से फिरेंगे and ask for forgiveness of your sins, और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं and turn away from your wicked ways, और स्वर्ग और अपने पापों की क्षमा मांगेंगे listen from them. तो मैं स्वर्ग में से उनकी What a सुनूंगा। promising God is there for us. कितना अच्छा और अद्भुत परमेश्वर का वचन है। I will forgive your sins, वो कहता है मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा and I will heal your land. और तुम्हारे उस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। This land is our nation, our country. और ये जो देश जो कहता है वो हमारा God देश has है। kept us and kept us safe up till now against this coronavirus. परमेश्वर ने इस कोरोना की महामारी से अभी तक हमें बचाए रखा। He's such a wonderful God. कितना अद्भुत परमेश्वर है वो। Jeremiah 17:14. और यिर्मयाह की पुस्तक 17वीं अध्याय Heal me, O Lord. और वो कहता है कि हे परमेश्वर मुझे चंगाई दे Save me, O Lord. कि तू मुझे बचा ले For you are the one I क्योंकि praise. तेरी ही स्तुति मैं करता हूँ। These are the words. And again, 1 Peter 2:24. पहला पत्रस He has taken away all our sins in the cross दूसरा अध्याय उसका 24वां वचन। on the body. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए उस क्रूस पर चढ़ गया He said, I will take away all your sins. जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। Enter into righteousness. धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। For I am the Lord that heals you. उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। Yes, it's the God who forgives sins and answers prayer. और सचमुच वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका क्षमा हमें क्षमा करता है और चंगाई देता है। When I was going through all these readings and verses, तो जब मैं ये सारे वचनों को मैं स्मरण कर रही थी, पढ़ रही थी, Lord said to me, परमेश्वर ने मुझसे कहा do not worry, my child. कि आपको चिंतित नहीं होना है। He told me through the words. उसने वचन के द्वारा मुझसे बातें की Yes, he's a good God. और सचमुच वो अच्छा परमेश्वर है। After finishing all the 40 books, और वो 40 जो है उसके जो वचन दिन का जो प्रतिदिन का वचन था वो पढ़कर खत्म होने के बाद में one more verse I forgot to tell. This is Isaiah 53, I think verse 5. यशायाह की पुस्तक He was pierced for our transgressions. यशायाह की पुस्तक 53वीं अध्याय He was crushed for our iniquities. And the punishment that brought us peace was upon his body. परंतु 5वां वचन परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, By his stripes we वो are हमारे healed. अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Whenever I get any prayer request, जब कभी भी हमें कोई प्रार्थना की विनती मिलती है, thank God because I get one prayer request daily. हर रोज एक न एक प्रार्थना की विनती हमें मिलती So ही when है। I say, I only say one thing. तो मैं Lord, हमेशा एक ही चीज कहती हूँ this child is your child. कि प्रभु ये जो बच्चा है Bless ये that तेरा child है and intervene into this life. और प्रभु उनके जीवन में आप मध्यस्थी करो और उन्हें चंगाई दो Heal that child completely. और पूरी तरीके से उन्हें चंगाई दो। Just yesterday I received a message. और जो है एक दो दिन पहले ही मुझे संदेश मिला One lady is pregnant, one sister is कि pregnant. एक स्त्री है वो गर्भवती है The child inside the
stomach is having heart problem. और वो जो बच्चा उसके गर्भ के अंदर है उसको हृदय का समस्या हो चुका है। So I received prayer requests. Lord, you are nothing with you, Lord. और मैंने Nothing is impossible with you. और मैंने प्रार्थना करके परमेश्वर से यही कहा कि परमेश्वर तेरे लिए तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे रिप्लाई आया कि रिपोर्ट नॉर्मल है। और 2 दिन के बाद हमें संदेश मिला कि वो जो है स्त्री को सब कुछ नॉर्मल है। कल मुझे मैसेज आया है और कल मुझे संदेश yesterday I received a message that उसका डिलीवरी आज है। that today the baby is going to get delivered। Lord, the normal and safe delivery comes from you। और हम प्रार्थना और प्रभु को हमने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर तू ही जो है सब कुछ संभालने वाला और नॉर्मल डिलीवरी करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर भला परमेश्वर His है blessing and His blood is upon us। और उसकी आशीष और उसका जो लहू है वो हमारे ऊपर है। There's one more testimony, small testimony, one lady from Calcutta। और एक और मैं गवाही देना चाहूंगी कि एक स्त्री है जो है Sister Mercy। कैलकटा से एक स्त्री है जिसका प्रार्थना का विनती है हमें मर्सी से मिला है। She told that I'm getting severe pain, that I can't bear। और वो बहन ने कहा कि उन्हें इतना दर्द हो रहा है उनके शरीर में डॉक्टर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। told me to go for surgery। और डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना ही Sister, पड़ेगा। I don't want to go for surgery। उन्होंने कहा कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। That time then I told Pastor Brian to pray। तब मैंने पास्टर ब्रायन से भी कहा कि प्रार्थना करें और हमने उसके लिए प्रार्थना किया। Yes, after 15-20 days I called her। और 15 दिन के बाद मैंने उन्हें कॉल करके पूछा Sister, operation हो गया? कि सिस्टर डिड यू गेट ऑपरेटेड? She said, no sister, I'm healed completely। और उन्होंने कहा कि मुझे ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं पूरी तरीके से चंगाई पा चुकी हूँ। तो ऐसा है, जब हम पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, And this is how our Lord is when we worship Him and we pray to Him with our whole He heart, answers prayers। वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। Sometimes He doesn't answer, it takes long time to answer our prayers। कभी कभार ऐसा होता है कि समय लगता है प्रार्थना का उत्तर आने के लिए, God is preparing us। क्योंकि वो हमें तैयार कर रहा How है strong we are in कि the हम Lord। कितने उसमें मजबूत है ये जानने के लिए। Yes. And after all these prayers and all that, I was just sitting and praying. One pastor came home। और जब हम यही प्रार्थना करते जब हम बैठे थे तब हम एक पासवान घर पर आए। I don't know who was that pastor, I don't know his name also। और मम्मी तब की बात बता रही हैं कि उस टाइम पर when after 40 days और जो है वो 40 दिन का वो किताब पढ़ने के बाद में एक पासवान घर पर आए और हम उन्हें जानते भी नहीं थे। sister, I know your case। और उन्होंने आके बस इतना ही कहा कि मैं जानता हूँ कि क्या समस्या है I तुम्हारी। said, pastor, who told you about me? उन्होंने कहा कि मम्मी ने कहा कि आपको किसने बताया। In the spirit I came to know that something is wrong here। I have to visit you। और उन्होंने कहा कि कुछ तो यहाँ Pastor, पर I don't गलत know है। you। I don't know you। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मैं तुम्हें जानती भी नहीं। Then I came to know through some sister, he got the message and he came home। The sister must have given the address और he came home। बाद में हमें पता चला कि कोई बहन जिन्हें हम जानते थे उनके द्वारा उन्हें पता चला और वो घर पर आए थे प्रार्थना के लिए। Prayed, he said, sister, you are concerned and you are worried and you are living in fear। और जैसे वो पासवान ने प्रार्थना करना शुरू किया उन्होंने कहा कि बहन आप चिंतित हो, आप भय में जी रही हो। आप डरो मत, he said। You do not have to fear for anything। You don't think that you have become old। आप ये मत सोचो कि आप जो है उम्र आपकी बीत चुकी है। आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ। or whether anything bad will happen to you। God has told me clear cut। और लेकिन उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे एकदम सरल से बताया है You are healed completely। कि आप पूरी तरीके से चंगाई पा चुकी हो। And today I am standing before you। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं पूरी तरीके से चंगाई पा चुकी You हूँ। are just not exaggerating। I don't know what type of pain it is in cancer। I don't know। और मैं आप There is कहो a small gland you have, but I don't know what is the pain still today। और आप ऐसे I don't कहोगे experience any pain till today। और आप ऐसे कहोगे कि मैं ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, लेकिन मुझे उस कैंसर का क्या दर्द था मुझे वो भी बिल्कुल भी याद नहीं है कि कैसा हुआ था वो। Sometimes I feel tired। कभी कभार मुझे थकान होती है, मैं भी थक जाती हूँ, Then I rebuke that life of Satan। लेकिन मैं शैतान का जो वो झूठ है कि मैं थक चुकी हूँ उसको मैं डांटती हूँ। So this is how my life was। और ऐसा ही मेरा जीवन है। And this pastor prayed and gave me a verse from Psalms 92 और from 10 onwards। भजन संहिता ये पासवान ने प्रार्थना किया Read this word। और मैं चाहती हूँ कि बहन मैगी आप ये पढ़े भजन संहिता की पुस्तक 92
10 से लेके आगे। Because I want blessings from all of you. आप लोग आज मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोग मेरे लिए। Psalms 92 verse 10-15. But my horn you exalted like a white horse. I have been anointed with fresh oil. My eye also has seen my desire on my enemies. My ears hear my desire on the wicked who rise up against me. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Amen. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. You declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के देर से चुपड़ा गया हूँ और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फले फूलेंगे और लबनोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। हे यहोवा के भवन, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर अपने हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट होगा कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और मैं कुटिलता और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। आमीन। Amen. This is the verse for each and every one of my और ये elders. और ये सारे वचन जो है, हम जितने भी बुजुर्ग हैं या जो गुरुजन हैं उनके लिए है। So I was really thrilled with these words. और जब ये वचन मैंने वो पासवान ने भी मुझे दिया तो मैं बहुत ही ऐसे जो है बहुत जोश में आ गई थी। I thank God for healing. और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ Today I'm not चंगाई के taking लिए। any medicine. और अभी भी मैं कोई दवाइयाँ नहीं लेती हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद करती And I हूँ। encourage each and every one. और मैं हर एक से Don't depend on और medicines. मुझे कोई भी दवाइयों पर आप निर्भर न Just रहो। look unto Jesus. आप परमेश्वर की ओर देखो He is the author and finisher of our faith. और वही हमारे विश्वास का रचयिता और He is इसका our अंत करने healer. वाला है। He is our healer. वही हमारा चंगाई देने वाला And है we are more than conquerors in Him. और उसमें हम जयवंत से भी बढ़कर हैं We live a victorious life. और हम जो है विजयी जीवन जी सकते हैं। And lastly, I just request every one of us और आखिर में मैं हर एक से विनती करूंगी that we all should go and preach the gospel to the people. कि हम परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, John 15:17 says clearly, क्योंकि I यह have chosen you, go and bear fruits. कि परमेश्वर And का the वचन fruits कहता that है last. कि मैंने तुम्हें चुना है और ताकि तुम फल लाओ और ऐसे फल जो टिकेंगे, Then whatever you ask in my name, I will give it. ताकि जो कुछ तुम मेरी नाम से मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। Yes, I really appreciate the Sister Mercy. और मैं जो है बहन में मर्सी का बहुत सराहना करती हूँ Mercy schedule. कि भले ही कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, Always busy with the business work. वो हमेशा अपने व्यवसाय को लेकर व्यस्त रहती हैं, She has her tracts in her bag. She लेकिन- gives to every rickshawala. She gives to every people she meets. और वो जितने भी लोगों से मिलती है, चाहे वो कोई रिक्शा में चलाने वाले हो या कोई भी हो, वो हर एक को सुसमाचार परमेश्वर का देती है। We take everything for granted. लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हर एक चीज को ऐसे ही सामान्य रूप से लेते हैं But I really appreciate her when she comes and she prays also every moment. और हर क्षण वो प्रार्थना भी करती रहती हैं और मैं जब कभी उन्हें देखती हूँ वो सुसमाचार प्रचार करती She हैं। had a tough time when her mother was ill. और जब उनकी माता जो है बीमार थी तब काफी कठिन समय से वो गुजरी When her mother passed away, she had no one beside her. और जब उनकी माता का देहांत हुआ तो उनके साथ में कोई था भी नहीं, लेकिन हमारी कलीसिया उनके साथ में खड़ी रही और सब कुछ अच्छा हुआ। Thank God for this. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके लिए Thank भी। God for everyone now who are looking out for some reason or the other, asking God for some request. और हम जो है जितने यहाँ पर एकत्रित हैं, जितने भी परमेश्वर से कोई ना कोई चीज के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, Especially the children. और खास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं Children are going mobile के वजह से they are going away. और जो है मोबाइल के कारण बच्चे यहाँ वहाँ पे भटक रहे हैं Praying for them, they are just not listening. और जो है इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी वो लोग सुनते नहीं हैं। Trust God. लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं Our children कि परमेश्वर हमारे बच्चों को ऊंचा उठाएगा and they will live in the fear of God.
और परमेश्वर के भय में हमारे बच्चे बड़े होंगे। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, और मैं मेरे बच्चों के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, और जो मेरा ख्याल रखते हैं। मेरा एक और बेटा है जो कल्याण में रहता है, और वो जो है प्रभु में पहले आए, जिसके कारण हम भी प्रभु में आए। और अभी वो अपने व्यवसाय में भी काफी व्यस्त है, और वो भी सेवकाई में है। If you start your church in Meera Road, I will start my church in Kalyan, and I will see that branch will come in Meera Road. और उन्होंने ऐसे कहा कि मैं कल्याण में कलीसिया शुरू करूंगा, और उसका ब्रांच जो है मीरा रोड में भी होगा। I thank God for a Glory to Glory church. और हम कल प्रभु को धन्यवाद देते हैं ग्लोरी टू ग्लोरी कलीसिया के I लिए, thank God for my child that He has made him a pastor. और प्रभु का धन्यवाद कि जो है मेरे बेटे को परमेश्वर ने पासवान बनकर चुना है, God will lift each one of us. और परमेश्वर हम सभी को ऊंचा उठाएगा। The shine you, Lord will lift you up. और भाई शाइन, परमेश्वर आपको बहुत जल्द ऊंचा उठाने वाले हैं। Thank God and praise Him. हम प्रभु को स्तुति देते हैं, उसको धन्यवाद कहते हैं। Lord, thank you, Lord. Take care of our children, Father. प्रभु Lord, this time we commit it to your hands. प्रभु ये क्षण को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, Thank you, Lord, for the words you gave them this और परमेश्वर इस समय में जो वचन आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद। Send me a word, Father, but remain in me and I will remain in you. प्रभु तेरा वचन कहता है कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, And whatever you ask in my name, I will give it to you. और जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हें Father, दूंगा। this morning we are not asking of a luxurious प्रभु life. आज की सुबह में हम कोई ऐशो आराम आपसे नहीं मांग We रहे, are asking you only for your protection upon us. प्रभु Father. सिर्फ आपका संरक्षण हमारे ऊपर हम मांग रहे Let your हैं। grace and mercy be upon us, O प्रभु Lord. तेरा अनुग्रह, तेरी अनुकंपा हम पर हो, ऐसी हम तुमसे प्रार्थना करते Thank you, हैं। Lord, for blessing you with your daily bread to us. प्रभु प्रतिदिन की तेरी रोटी से प्रभु तू हमें तृप्त करता है, इसके लिए तेरा Thank you, Lord, धन्यवाद। for the water you have given us to drink. प्रभु जो पानी हम पीते हैं उसके लिए भी तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord, for this wonderful rain that you have blessed us in this season. प्रभु जो बारिश तूने हमें दी, प्रभु तेरा You धन्यवाद। are such a good God, Lord. प्रभु तू कितना अच्छा परमेश्वर है। Season out of season, you're always there. प्रभु हर समय तू हमारे साथ में रहता है। Thank you, Father. प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते हैं। You said in your word in Joshua, प्रभु यहोशू में तूने अपने वचन में कहा Isaiah, I don't remember the word, but it's written that though the mountains be shaken, कि भले ही आप जो है वो पर्वत हिल जाएं, and the hills be removed, और वो जो है जो पर्वत हटा दिए जाएं, my love for you लेकिन मेरा जो प्रेम तुम्हारे लिए है forever. वो हमेशा के लिए बना रहेगा। This is our God who's compassionate. और ऐसा ही हमारा करुणामय परमेश्वर है। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for this time. प्रभु इस क्षण के लिए। As we go back home, Lord, प्रभु जैसे हम वापस जाते हैं घर में, we pray, Father, for all our children, Lord, to be filled with your Spirit. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे तेरे बच्चों के लिए, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से हर एक को भरे रख, May we go back home anointed. और प्रभु अभिषिक्त होकर अपने अपने घर जाएं, ऐसा होने And we दे। will come next Sunday with testimony. और अगले रविवार को वो गवाही के साथ में वापस आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। Praise you and we glorify तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। you. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I hope we are all blessed. मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी आशीषित हुए हैं आज के वचन से, And even as we heard the word, और जैसे आज हमने वचन को सुना, we will not just be a hearer, but we will be a doer. सिर्फ हम वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले हम बनेंगे। And how would we be a doer? और हम करने वाले उसके अनुसार कैसे बनेंगे? Next time we feel there is an area which needs healing, और अगली बार जब हमको ऐसे लगता है कि हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें चंगाई की जरूरत है, we will take the word हम वो वचन को लेंगे and we will claim it for और ourselves. हमारे जीवन में अपने आप के लिए हम उसको घोषित करेंगे। See, the Bible और बाइबल ऐसी है, is only a book. वो सिर्फ एक किताब है। You keep it under your pillow or you keep it in your closet. आप उसे कबर्ड में रखो या आप उसे अपने सिरहाने रखो, It's just a book. वो सिर्फ एक किताब है। But when you open it लेकिन जब आप उसे खोलकर पढ़ते हो and when you read it, और जब आप पढ़ोगे, automatically it becomes a living word. तब वो वचन हमारे लिए जीवित वचन बनेगा। What we will do today, आज हम क्या करेंगे? maybe after in the evening or by afternoon, और जो है शाम को या दोपहर तक we
put all the healing verses और ये जितनी भी चंगाई की जो वचन है on Facebook as well as on WhatsApp, हमारे WhatsApp के ग्रुप में और Facebook दोनों पर हम डालेंगे, so that ताकि if you feel anybody needs healing in your families, आपको यदि लगता है कि आपके परिवार में किसी को चंगाई की जरूरत है, send that word to them. तो वो वचन आप उन्हें भेज सकते हो। As I say, you don't need a pastor. आपको, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको किसी पासवान की जरूरत नहीं You है। don't need Benny Hinn to come here and heal you. आपको बेनी ही यहाँ पर आके आपके लिए प्रार्थना करे, वो जरूरी नहीं है। You just need your word. आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन की That word is जरूरत है। your sword in your hand. और वही वचन जो है वो आपके हाथ में एक तलवार के जैसे That काम sword करेगा। can pierce every bones, every marrows, every और flesh. परमेश्वर का वचन जो तलवार है वो हर एक जो है नसों में, हर एक हड्डियों में, हर एक कूदे में जाके जो है चंगाई को देगा। And doctors can't operate. ऐसी जगहों पर जहाँ डॉक्टर को ऑपरेशन नहीं कर सकते, That is the place where the word can go and heal. वो वही जगह है जहाँ परमेश्वर का वचन जाकर जो है ऑपरेशन कर सकता है, चंगाई दे सकता है। So when doctors say, only miracles can work, तो जब डॉक्टर जैसे कहते हैं कि इसके लिए तो कोई चमत्कार की ही जरूरत है, don't worry, the God of miracles is with us. लेकिन तब हमें कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि चमत्कार करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। Amen. हमें So even as we are praying, तो जैसे हमने प्रार्थना की, we believe that none of us sitting here will ever be sick in the name हम of विश्वास Jesus. करते हैं कि हम में से जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम कभी भी बीमार नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम The से। healing हमें process is already started in your और life. चंगाई का जो प्रक्रिया है वो आपके जीवन में शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। You know, I believe that we all healed in the name of मैं विश्वास Jesus. करता हूँ कि हम सब चंगाई पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। And if you still need your faith to rise up for और you, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो विश्वास है वो और ऊंचा उठ जाए, Mommy read that 40 days of book, the 40 days book. तो मम्मी ने जो 40 दिन की वो किताब को पढ़ी थी, We are going to give you verses हम आपको वचन दे रहे in हैं। Hindi and in English. इंग्लिश में भी डालेंगे, हिंदी में भी If डालेंगे, possible, we put it in Marathi as अगर well. हो सकेगा तो मराठी में भी डाल देंगे। But the idea is, लेकिन हमारा बोलने का मतलब ये है none of us here will be ever कि sick. हम में से जितने यहाँ पर हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। And it doesn't just mean sick in the body. और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ शरीर की बीमारी, It could be sickness in your finances. आपकी आर्थिक समस्या जो वो भी एक बीमारी हो सकती It है। could be sick in your mental health. आपका जो मानसिक बीमारी हो सकती है, It could be sickness, maybe a small toothache or maybe a nail pain. हो सकता है कि कोई बीमारी कोई बड़ी ना हो, एक छोटा सा दांत का दर्द या आपके नाखून का दर्द भी हो सकता है। Doesn't matter. If it is needs healing, it will get healed. मायने नहीं रखता क्या बीमारी है, अगर चंगाई की जरूरत है तो उसका वचन चंगाई देगा। So if you're angry, just let's stretch our hands towards our mommy. तो यदि आप आज पर वचन के द्वारा यदि आप उत्तेजित और प्रेरित हुए हैं तो आप मम्मी की ओर अपने हाथ को बढ़ाएंगे And pray for her. और उनके लिए प्रार्थना करें That God would give her more and more ताकि revelation. परमेश्वर उन्हें और भी और प्रकटीकरण दे। And even as she is testified, और जैसे उन्होंने गवाही को दिया, testimony will be permanent in the उनकी name of गवाही Jesus. हमेशा के लिए बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम And से। this testimony will be used और ये जो गवाही है वो इस्तेमाल की in जाएगी preaching the gospel unto the unreached. और जो जहाँ तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है उन लोगों तक उसका वचन पहुँचने के लिए, परमेश्वर का वचन पहुँचने के लिए इस्तेमाल किया In जाए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मैं Let's प्रार्थना now just stretch our hands towards the mobile. हम अपने हाथों को इस मोबाइल की ओर भी बढ़ाएंगे All those who are watching from the और social वो सारे media, लोग जो सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, if they ever found themselves sick and they're watching this video, अगर कभी भी जब कभी भी वो इस वीडियो को देखते हैं और उस समय यदि वो अस्वस्थ है, बीमार है or they need prayers for their loved ones, या उनके प्रियजनों के लिए वो चंगाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, we pray that the power of the Holy Ghost हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का जो वो सामर्थ है will heal them wherever they are. वो in जहाँ Jesus' कहीं name. भी है उन्हें वहाँ पर चंगाई देगा। The power of the Holy Ghost पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है, will form new organs wherever they need those organs to function. जहाँ पर नए अंगों की जरूरत है वहाँ पर तो नए अंग भी बना देगा। Death, और मृत्यु you have no authority in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। Sickness, बीमारी, you have no authority over the one who's watching this video. In the जो name इस of Jesus. वीडियो को देख रहे हैं उनके ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। Everything is going to happen according to the will of our Holy हर Spirit. एक चीज परमेश्वर की इच्छा के और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार
अनुसार होगा। And Jesus, who's the living God, और यीशु जो जीवित परमेश्वर है, is going to be you, would make sure he will reveal you his own self in that situation. और वो इस बात का ध्यान रखेगा कि वो अपने जीवन में आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करे। Father, we give you the glory. पिता सारी महिमा तुझे देते Father, we हैं, give you the honor. सारा आदर तुझे देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से In प्रार्थना Jesus' name we की। pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना Amen. की। Amen. Now it's time for offering. ये समय है हम अर्पण लेंगे, And even as we take offering, और जैसे हम अर्पण लेते हैं we call